Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 505. 6th of May 1987, Wise and Sunni Jamaat Khana of Albuquerque, New Mexico State of United States. جعلی مدد تقریباً 1.5-2 سال ہوئے. یہ جماعت خانہ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا، ریپیئر ہوتا تھا تو میں آیا تھا. الحمدللہ اچھا خاص آدمی زیادہ ہو گئے. اب جماعت ماشاءاللہ بڑی ہوئی، لیکن مجھے ایسا دکھتا ہے کہ 2-4 برسوں میں آپ کو یہ جماعت خانہ چھوٹا پڑے گا. جماعت بڑھے گی اور ضرور بڑھے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا آپ کا ایمان بھی بڑھاوے، آپ کی محبت بھی بڑھاوے اور دنیا کے اندر اپنی نوازشیں اور برکتیں بھی دے دیں. ہے جگت سروور مانگلنتا موتی مولا کالا دھا جی جتن کرین موتی راکھ جو تو ملیاد کیرا ست سمجھنے رہیے اور دی جانے نہ کہیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت دفعہ ہمارے مشنری صاحبان، وائز کرنے والے، جنان بولنے والے، کبھی بھی ایسی کوئی بات آتی ہے صلوات پڑھانے کی، ایسا میں بچوں کو بھی سنتا ہوں تو وہ بولتے ہیں، انگلش میں کبھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں سے صلوات ان دی نیم آف مولانا حضرت امام، یا ہم لوگ ایسا کہتے ہیں حضرت امام کے نام کے اوپر صلوات پڑھو. لیکن دیکھو دیندارو، آپ تو مولا کے اوپر تو صلوات پڑھتے ہی نہیں، نام کے اوپر تو صلوات نہیں ہوتی. بھلا دعا پڑھو تو پہلے پاٹھ کے اندر آدھا پاٹھ پورا ہو گیا، سورۃ الفاتحہ پورا ہو گیا، اور پھر اس کے اندر آتا ہے سجدہ وجہی علیک وتوکلت علیک منک قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الأئمة الأطهار وعلى حجة الأمر صاحب الزمان والعصر إمامنا الحاضر الموجود مولانا الشيخ كريم الحسيني. اللهم لك سجودي وطاعتي. پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ اے اللہ محمد کے اوپر، اعلیٰ عربی زبان میں کہتے ہیں اپون، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صلوات پڑھنے کے لیے، خدا نے فرمان کیا ہے تو اس نے بھی ایسا ہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ان اللہ، بے شک. عربی زبان میں جہاں ان آتا ہے تو اس کا مطلب پریشر ڈال کے خدا کہتا ہے، ویری بے شک. ان اللہ و ملائکتہ
اللہ خود اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی سلام بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. اور پھر ہم کو حکم کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس کے اوپر صلوات پڑھو اور اس کے سامنے گردن جھکاؤ، یعنی اوبے کرو اس کو، اس کا حکم مانو. ہماری جو صلوات ہے وہ ایک عظیم چیز ہے. 2 دن آپ کے پاس ہوں، میں آپ کو اپنے مذہب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مکس کر کے بتاؤں گا. کوئی خاص ایک سبجیکٹ نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت سی چیزیں مجھے کہنی ہیں. کاش کہ کبھی ایسا دن آئے، انشاءاللہ آئے گا شاید، میں آؤں ادھر 7 دن آپ کے پاس ٹھہروں اور آپ تھک جاؤ اور میں نہ تھکوں. مولانا علی شاہ ماباب صلی اللہ علیہ ایک دن بمبئی کے اندر جو کانڈی محلے کا جماعت خانہ ہے، آج اس کو ہم کریم آباد کہتے ہیں، امامت کا جومہ مولانا علی شاہ کا اور پیر کا جومہ پیر شہاب الدین شاہ کا. پیر شہاب الدین شاہ مولانا علی شاہ ماباب کے بڑے فرزند تھے اور مولانا امام سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. ان کے پاس پیری جامع تھا. دیکھو دیندارو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ باہر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا سمجھنے کے لیے. غیروں کی کتابوں کے اندر اسماعیلی مذہب نہیں ملے گا. اسلام کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں یا مسلمانوں کی یا نان مسلمانوں کی پڑھنے سے آپ کو اسماعیلی مذہب کا پتہ نہیں لگے گا. اسماعیلی مذہب کو پڑھنے کے لیے اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اور یہ وہ مذہب ہے کہ جو رسول اللہ لے کے آئے تھے. نبی زمان، آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت، طریقت اور حقیقت بیان کرتے تھے، وہ تینوں چیزیں زمانے کے ساتھ ہمارے گروپ میں، جن کو آج ہم اسماعیلی گروپ کہتے ہیں اسلام میں، ان میں رہی. عام مسلمان بھائیوں نے جو آسان چیز تھی، شریعت تھی، اس کو پکڑ لیا. حقیقت اور معرفت کو تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن طریقت کو بھی نہیں سمجھا. نبی کریم نے معرفت نہیں سکھائی، حقیقت سکھائی، اور ان حقیقتیوں کو خدا نے رحمت کر کے معرفت کی بخشش دی. معرفت سیکھنے سے نہیں آتی، معرفت خدا کی رحمت ہو جاتی ہے. جب وہ مولا خوش ہو جاتا ہے تو بخشش کے طور پہ دیتا ہے. لیکن طریقت اور حقیقت ہمارے درمیان نبی کے زمانے سے چلی آئی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. تو وہ جو نبی کا جو نور ہے وہ خدا ہی کا نور ہے، لیکن نبی کے نور کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت بنایا. میں ذرا الٹا بول دوں تو کہ خدا نے اپنی رحمت کو محمد رسول اللہ بنایا، اور خود خدا نے کہا ہے کہ یا نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. رحمت للعالمین کا جو لقب اللہ نے دیا، تو میں تو یہی کہتا ہوں اور میں مسجدوں میں جا کے بھی بولتا ہوں کہ خدا نے اپنی رحمت کو محمد بنایا. اور وہ محمد جو ہے نا، وہ محمد کہ جس کی لمبی داڑھی تھی،
निहायती गुलाबी रंग के खूबसूरत आदमी थे। लंबी आंखें थीं और हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे नींद में अभी सो जाएंगे। पगड़ी थी, छोटी सी पगड़ी बांधते थे, थोड़े थोड़े बाल्ड थे, कानों की लौएं यहाँ गालों के साथ चिपकी हुई थी, लंबी सीधी नाक थी, ऊंची लंबी पतली गर्दन थी और कद के तकरीबन 6 फुट लंबे थे। लंबे लंबे हाथ थे हुजूर के। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया है। मैं इस मोहम्मद की बात नहीं करता तो जो दिखने में इंसान नजर आते थे, नहीं, वो तो गुजर गए और मदीने के अंदर दफन हो गए। खुदा ने अपनी रहमत को मोहम्मद बनाया तो वो नूर था, जो नूर हमको इन आंखों से नहीं दिखता। नूर को समझने के लिए हमको अंदर की आंखें, बाहर की आंखें बंद करके अंदर की आंखें खोलनी पड़ती हैं, तब वो नूर दिखता है। मगर यूं ही आप, अभी मैं कह रहा हूं, आप आंखें बंद कर लोगे तो आपको नूर नहीं दिखेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके साथ साथ दुआ मांगनी पड़ती है और फिर उसके साथ साथ इंतजार करना पड़ता है कि मौला हम पे राजी हो जाए तो हमको वो अंदर में वो आंखें देवे कि हम मोहम्मद का दीदार कर सकें। और वो आप करना नहीं चाहते। 250 की जमात में सुबह 2:45 आदमी भी नहीं होते। बैतुल ख्याल के अंदर वो चीज मिलती है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अंतर की आंखें खोलने के लिए हमको वो बाइनोकुलर चाहिए कि जो दूर तक देख सके और ये आंखें नहीं देखती। तो दीनदारों, हमारे यहाँ हमारे इस इस्माइली तरीके के अंदर जो पीर है ना, वो मोहम्मद का नूर है। हम जिसको पीर कहते हैं वो मोहम्मद का नूर है, वो आले रसूल है। जिस तरह हजर इमाम आले रसूल है और सारी दुनिया के अंदर एक ही इमाम होता है, ऐसा सारी दुनिया के अंदर एक ही पीर होता है एट ए टाइम। 2 पीर एट ए टाइम नहीं होते, 2 इमाम भी एट ए टाइम नहीं होते। अली का नूर इमामत का नूर है, मोहम्मद का नूर पीर का नूर है। और इन पीरों के अंदर, हमारी पुठियों के अंदर जो पीर हैं, उस सिलसिले को पढ़ो तो अव्वल पीर नबी मोहम्मद खुद हैं। वो मुर्शिद अव्वल है और मुर्शिद कामिल है। मोहम्मद से बड़ा मुर्शिद कोई नहीं। और उसके बाद ये जो रहमत का जो नूर है, जैसा मैंने अर्ज की आपको कि अल्लाह ने अपनी रहमत को मोहम्मद बनाया, तो मोहम्मद का बदन जो था, कपड़े थे, वो तो गुजर गया, लेकिन उसका नूर ता कयामत रहेगा। और वो नूर इमाम हसन के अंदर था। अभी अरबी जबान के अंदर प नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में पी कहते हैं। अरबी में जो लेटर्स हैं उसमें प नहीं है। और पीर का जो लफ्ज है वो फारसी है, अरबी नहीं। लेकिन हमारी अरबी किताबों के अंदर पीर के लिए हुज्जतुल इमाम था, या इमाम मुस्तऊदा का लफ्ज इस्तेमाल होता था कि जिसको अपॉइंट करे हजर इमाम। मौलाना हजर इमाम 50वें पीर हैं। मौला के पास 2 जामे हैं, वो इमाम भी है, 49वां 49th इमाम है, लेकिन 50वां पीर है। पीर जो है वो मोहम्मद का नूर है, इमाम है वो अली का नूर है। और हमें जो दीन सिखाता है वो पीर सिखाता है। इमाम की शनाख्त पीर बताता है। तो अली शाह माँ बाप सादी जोमे में, यानी इमाम के जोमे में थे, और उन्होंने पीरी जोमा पीर शाहबुद्दीन शाह को, उनका एक दूसरा नाम भी था शाह खलीलुल्लाह, इनको सौंपा था। एक दिन मौला कानी मोहल्ले के एक करीमाबाद जमात खाने में आए। कामड़िया हाजी मौला के साथ हुजूर में थे।
مولا فارسی میں فرمان کرتے تھے، حاجی کامڑیا اس کو ٹرانسلیشن کرتے تھے. جیسے ہی مولا اندر آئے، تخت پہ بیٹھے، بارش شروع ہونے لگی. اتنی زور کی بارش ہوئی، کھڑکیاں بجنے لگیں. لوگوں نے، والنٹیئروں نے بند کر دی. حاجی کامڑیا حضور میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے. کامڑیا حاجی، ارے خدا دیکھو تو بارش بہت ہو رہی ہے. کھڑکی کھول کے ایسا دیکھا، آ کے کہتا ہے مولا بہت زور کی بارش ہے. حاجی کامڑیا، جی خدا دیکھو کہ یہ بارش کے قطرے تیرے خیال میں 1 منٹ میں کتنے قطرے گرتے ہوں گے؟ من میں کہنے لگا میں یہ کہاں گن سکتا ہوں، لیکن حکم تھا جاؤ. کھڑکی کے پاس جا کے واپس آ کے کہتا ہے مولا وہ تو اتنے زور کی بارش ہے، کتنے قطرے پڑتے ہیں وہ تو تو جانتا ہے، میرے پاس تو حساب نہیں. تم اس کو گن سکتے ہو؟ کہتے نہیں خداوند، نہیں گنا جا سکتا. جماعت کو سناؤ کہ مولا فرماتے ہیں یہ بارش جو ہو رہی ہے اس کے قطرے کتنے پڑتے ہیں 1 منٹ میں، تم کوئی گن سکتے ہو؟ جماعت نے کہا نہیں خداوند. حاجی کامڑیا، جماعت کو کہو جب کوئی مومن 1 دفعہ صلوات پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ فرشتے کلمے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس صلوات کا حساب نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اس زوردار بارش کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. صلوات جس کو ہم درود کہتے ہیں، محمد اور اس کی آل کے اوپر درود ہے. خود خدا بھی، فرشتے بھی محمد کو سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اب دیکھو اس کے اندر ایک چیز سمجھنے کی ملتی ہے کہ اللہ اور فرشتے 1-2 کی بات نہیں، پلورل سینس میں ملائکۃ المقربین آ گیا. اس میں تمام فرشتے محمد کو سلام کرتے ہیں. صلوات ایک قسم کا سلام ہے، اور سلام کیا ہوتا ہے؟ پیس بی اپون یو. خود خدا بھی پیس بھیجتا ہے اور ہم بھی. ہماری پیس میں اور خدا کی پیس میں فرق یہ ہے کہ وہ مالک ہے کیونکہ اس کی رحمت ہے یہ، اور ہماری پیس یہ ہے کہ ہم اس کے پاس دعا مانگتے ہیں، ہم ایک سلام کرتے ہیں، ہم اپنی عزت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی اس کے واسطے دل میں جو محبت رکھتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم مولا کو دیکھتے ہیں تو خود بخود ہی ہماری زبان سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نکلتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتا ہے کہ صلوات بہت پڑھو، تمہارا زور دن بدن بڑھے گا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے دشمن دور ہوں گے، تمہاری بلائیں دفع ہوں گی. ہر روز اپنی آل اولاد کو بھی سکھاؤ کہ کم از کم 1 دفعہ صلوات کی تسبیح نکالا کرو. ہماری جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو 5-5 ہزار صلوات روز پڑھتے ہیں، یعنی 50 تسبیحاں. یہ تسبیح 10-20 دانے کی نہیں. ٹھیک ہے، جماعت خانے کے اندر تسبیح پڑھانے والے کے اوپر ہے، من میں آیا تو 20 دانے، من میں آیا تو 30 دانے، من میں آیا تو 14 دانے. لیکن ہماری جو تسبیحاں ہیں، حضرت امام کا فرمان ہے کہ جماعت خانے کے اندر بھی 33 دانے کی تسبیح کم از کم نکالو. مگر یہ تسبیح 101 دانے کی ہے، اسماعیلی تسبیح جو ہے طریقے کی، تو وہ برابر 101 دانے کی تسبیح ہے. خیر، کم از کم 1 تسبیح بچوں کو ضرور کہو، خود بھی نکالو، صبح نکالو، دوپہر کو نکالو، شام کو پڑھو، جب بھی فرصت ملے 1 تسبیح صلوات کی ضرور پڑھو. اور اس کے ساتھ بعد میں کوئی دعا مت مانگو. حضرت امام کو کچھ کھانا کھلا کے آتا کہ خدا ابھی میرے کو $10-20 دے دے، وہ نہیں. یہ ایک قسم کی مہمانی ہے،
یہ किस्म की हमारे दिल में से निकली हुई मोहब्बत के इजहार की एक तस्बीह है। जब हम सलवात पढ़ते हैं और हम कुछ नहीं मांगते तो वो मौला बड़ा खुश होता है, फिर वो अपनी मर्जी से हमें बख्शिशें देता है। अब ये जो सलवात है एक कीमती चीज है, एक मोती की तरह है। कि सदगुरु नूर हमारे पहले पीर जो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने आके जब ये अपने मजहब का प्रचार तबलीग शुरू कर दी तो उन्होंने ये गिनान फरमाया। सदगुरु नूर का नाम नूरुद्दीन था, हजरत नूरुद्दीन मोहम्मद। मैं अभी अभी आपको पीर के नूर की बात कर चुका हूं। कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं आपको कह दूं कि बहुत से लोग खसूसन आजकल जो यूनिवर्सिटियों में से डिग्रियां वगैरह लेके आए हैं, उन्होंने इस्माइली मजहब की स्टडी नहीं की, गैरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ली, डिग्रियां ले ली। किसी ने बुश निरंजन के ऊपर डिग्री ले ली, किसी ने 10 अवतार लिख के डिग्री ले ली, किसी ने किसी और अपने इस्माइली शास्त्र के ऊपर से डिग्रियां महज ले ली, मगर उसके अंदर क्या चीज है वो कुछ पता नहीं। हमारे बहुत से लोगों ने पीरों और गिनानों को उनकी लेवल में से डाउन कर दिया और तमाम दूसरे किस्म के पीरों के साथ मिला दिया। कोई कहता है कि वो हसन बिन सबा की तरह है, कोई कहता है कि वो नासिर खुसरो की तरह है। ठीक है, इज्जत से तो आज भी आप ईरान में, बदख्शान में, अफगानिस्तान में और वो रशिया के जहां फारसी बोली जाती है, फारसी बोलने वाली कौमों के अंदर आप जाओ तो जो दादा होता है ना, उसको भी पीर कहते हैं, नाना को भी पीर कहते हैं। जो मुल्ला मौलवी बड़े हैं, बड़ी उम्र हो जाती है, उनको भी पीर कहते हैं। फारसी जबान का जो पीर का जो लफ्ज है वो बुजुर्ग के लिए आता है, लेकिन हम बुजुर्गी के और इज्जत के हिसाब से नासिर खुसरो को पीर कहते हैं। पीर नासिर खुसरो बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन कभी हम ये कहें कि पीर सदरुद्दीन और पीर नासिर खुसरो बराबर थे तो हमारी जबरदस्त भूल है। पीर सदरुद्दीन मोहम्मद का नूर है, नासिर खुसरो मोहम्मद का नूर नहीं, वो तो मोहम्मद का गुलाम है। नासिर खुसरो पहले इस्माइली था नहीं, वो पैदा हुआ तो इस्माइली नहीं था, इसनाशरी था। इसी तरह से हसन बिन सबा भी इस्माइली पैदा नहीं हुआ, वो भी इसनाशरी था। हमारी हिस्ट्री अगर आप पढ़ो तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े जबरदस्त उलेमा और बड़े लीडर जो पैदा हुए वो कन्वर्ट होके इस्माइली मजहब में आए। इस्माइली मजहब की शान, इस्माइली मजहब का मजा चखने के बाद उनको पता लगा और वो इस्माइली आए। तो वो लोग, वो तो मुरीद थे। हसन बिन सबा इमाम और पीर का मुरीद था। नासिर खुसरो इमाम और पीर का मुरीद था। नासिर खुसरो पीर के उस दर्जे तक नहीं। किसी भी इमाम ने नासिर खुसरो के लिए पीर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने सब्ज़ली को पीर का दर्जा दिया मरने के बाद, नासिर खुसरो का दर्जा इतना भी नहीं। मौलाना अली शाह मावत ने वजीर इस्माइल गामजी गुजर गया, उसके बाद उसको पीर का दर्जा दिया। हसन बिन सबा और नासिर खुसरो का दर्जा वजीर इस्माइल गामजी जितना नहीं। हमको ये बातें समझने की जरूरत है कि हमारा जो मजहब है उसकी जो बेस है ना, उसमें नूर ही नूर है। नूर और चीज है, बड़े बड़े दर्जे और चीज हैं। कितना भी इल्म हासिल हो जाए मगर नूर के बराबर नहीं होता। नूर का एक जलवा जो होता है किस्मत पलट डालता है। मौलाना अलाउद्दीन मोहम्मद के एक फर्जंद थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके अंदर इमाम के बेटे और इबादत की वजह से आले रसूल थे वो, और उन्होंने 18 साल की उम्र में इस जमाने का, सारी दुनिया का बड़ा आलिम जिसका नाम जलालुद्दीन रूमी था, एक आंख के इशारे से जलालुद्दीन रूमी की सारी जिंदगी पलट डाली। और इसकी 18 बरस की उम्र के जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो कौन था? हजरत शम्स तबरेज थे। मौलाना
अलाउद्दीन मोहम्मद के फर्जंद थे। और मौलाना रूमी अपनी मसनवी में लिखते हैं कि शम्स तबरेजी के नूर मुतलिकस, शम्स तबरेज कहता है कि शम्स तबरेज है ना, वो सिर पांव से नूर ही नूर है। इमाम के जो घर वाले हैं, आले रसूल जो हैं, उनकी शक्ल शबाहत, उनकी हील चाल, उनका कलाम, उनकी दर्जे, उनकी बातें दुनिया की मोहताज नहीं है। तो ये नूरी हकीकत जो पीर और इमाम की है, वो हमें इस मजहब में समझनी चाहिए, तब जाके हमें पता लगता है। देखो दिनदार हजरत इमाम जब भी जमात में आता है तो वो पीर के जौमे में होता है, पीर के जौमे में होता है। पहले जमाने के अंदर जब भी इमाम का जौमा पीर के जौमे से जुदा हुआ, जैसे कि मौलाना हसन अली शाह माँ बाप पहले पीर थे अपने अब्बा के जमाने के अंदर, मौलाना शाह खलीलुल्लाह इमाम थे, मौलाना हसन अली शाह पीर थे। लेकिन जब खुद इमाम बन गए और पीरी जौमा अपने फर्जंद अली शाह को दे दिया, तो हसन अली शाह माँ बाप अकेले कभी जमात में नहीं आए, कभी नहीं, पीर के साथ ही आए। पीर अकेले आते थे। एक बुजुर्ग थे जो मेरे उस्ताद की जगह थे, मैंने बहुत कुछ उनके पास से सीखा। वो और उसके बाप और उसके जो दादा थे इमामों की खिदमत में रहे। इसका नाम था सैयद मुश्ताक अली दीदार अली। बम्बई में जो बम्बई के जो लोग हैं जिनकी उम्र 40 बरस के ऊपर की है, उनको पता होगा कि सैयद मुश्ताक अली कौन थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह तखत नशीन हुए 8 बरस की उम्र में, तो एक टोपी पहने हुए साइड में एक लड़का खड़ा है, 12-15 के 16 साल की उम्र होगी। ये लड़का सैयद मुश्ताक अली दीदार अली है। इसके अब्बा का नाम दीदार अली था। वो अली शाह हसन अली शाह माँ बाप की खिदमत में रहे और ईरान से हसन अली शाह के साथ आए थे। तो मौला ने उसको हुक्म किया हुआ था, जमाती बहुत सी कामकाज करते थे। सैयद मुश्ताक अली मुझको उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई। एक दफा कहने लगे कि जमात खाने के अंदर 2 कुर्सियां मुखी के पास राइट साइड में हमेशा पड़ी रहती थी, ऑलवेज, दरखाना जमात खाना बॉम्बे में। क्योंकि ऐसा हुआ कि मौलाना हसन अली शाह माँ बाप या मौलाना अली शाह माँ बाप दोनों और या अकेले पीर साहब जब जमात दुआ पढ़ती हो गई या कोई भी नोटिस दिए बगैर चले आते थे, तो मौला आके बैठ जाते थे। कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ, मौलाना अली शाह माँ बाप अकेले आए, और जब अकेले आए तो कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे, नीचे जमीन पे बैठ के जमात दुआ पढ़ रही थी। मौलाना अली शाह ने भी जमात के साथ दुआ पढ़ी, क्योंकि दुआ का पढ़ना वो पीर का काम है। 6 बरस का 8 बरस का एक बच्चा इधर आता है, मुखी साहब को कहता है, अमर है मुखी साहब। तो मुखी साहब के पास जो अमर है ना, वो कहां से आया? अपॉइंटमेंट की है काउंसिल ने, तो क्या काउंसिल के पास अमर है? नहीं दीनदारो, काउंसिल के पास अमर नहीं है। खाना वदान कहने की ताकत काउंसिल के पास नहीं है। मगर इमाम ने काउंसिल को कहा है कि ये मुखी को बनाओ, तो वो अमर इमाम का मुखी के पास है। तो मुखी अपना अमर उस आदमी को देते हैं कि जो दुआ पढ़ाता है। उस वक्त मुखी भी उस आदमी के पीछे दुआ पढ़ते हैं। जमात का उस वक्त जो लीडर और अमर जिसके पास है, वो शख्स है, चाहे वो बच्चा है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, जो दुआ पढ़ाता है ना, उस वक्त वो पीर की गादी पे होता है, वो पीर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जूनी जो दुआ थी, आप बच्चों को तो पता ही नहीं, लेकिन 40 बरस पहले जब हम जूनी दुआ पढ़ते थे तो उसमें आता था, तौबा तौबा तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनहगार, या शातु बख्शिए बख्शनहार, दुआ तो पीर पड़े, बंदो बेनती करे,
پیر دعا پڑھتا ہے، جماعت کو لیڈ دعا کے اندر پیر کرتا ہے. تو جو آدمی دعا پڑھاتا ہے وہ حقیقت کے اندر پیر کے ہاتھ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پیر دعا پڑھ رہے ہیں. بہت بڑا درجہ ہے دعا پڑھانا. دعا پڑھانے والوں کو پتا نہیں کہ میں کہاں ہوں. دعا پڑھانے والوں کو معلوم نہیں کہ میری آج اس وقت کیا ڈیوٹی ہے، میرے اوپر کتنی جوخم داری ہے، وہ دعا پڑھانے والے کو معلوم نہیں. آج میں کہہ رہا ہوں کہ دعا پڑھانا یہ تو بہت زبردست ایک عالم بزرگی کا ہے. دنیا کے اندر لگ بھگ 60-65 کروڑ جتنے سنی مسلمان ہیں. یہ سنی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو امامت کی شناخت نہیں. اور حضرت ابو بکر کی جب کوئی بات آتی ہے تو یہ لوگ بڑا فخر مانتے ہیں. کیا بات کے لیے؟ کہ رسول اکرم نے ایک دفعہ بیمار تھے تو حضرت ابو بکر کو کہا کہ تو نماز پڑھا، اور حضرت ابو بکر نماز پڑھانے گئے. یہ سنی 65 کروڑ سنی، حضرت ابو بکر نے زندگی میں ایک دفعہ نماز پڑھائی. ان کے کہنے سے کہتا ہوں، ہم تو شیعہ جو مانتے ہیں وہ کچھ اور ہی چیز ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ ساری زندگی میں حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، تو آج 1400 برس تک یہ سنی اس چیز کا فخر لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. کتنا بڑا فخر ہے. آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ ہمارے جماعت خانے کے اندر جو نماز پڑھاتا ہے، ہماری دعا ہے الحمدللہ وہی نماز ہے. ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ہمارے اور ان کے فرق میں یہ تفاوت کیوں ہے. تو ہمارے ہاں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کئی دفعہ نماز پڑھا چکے ہیں، دعا پڑھا چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں. حضرت ابو بکر کو فخر کیا ہوا اور یہ 65 کروڑ مسلمانوں کو فخر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، کیونکہ وہ کام روز رسول اللہ کا تھا. رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دن جب کہہ دیا ابو بکر کو کہ تم نماز پڑھا، تو ابو بکر تو خوشی سے لال لال ہو گئے کہ رسول اللہ نے اپنی جگہ مجھ کو دی. جب مکھی کہتے نا امر شاہ پیر جو یا امر حاضر امام، تو وہ امر ٹرانسفر ہوا اس کے پاس. ارے اس کو تو فخر سے دل میں خوش ہونا چاہیے کہ آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں پیر بیٹھتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں بہت کم دعا پڑھاتا ہوں. میں نے کبھی مانگا نہیں کہ مجھے دعا پڑھانی ہے. کبھی کبھی مکھی بولتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں بہت کم اس لیے پڑھاتا ہوں، میں اس لائق نہیں کہ میں پیر کی جگہ پہ بیٹھ کے جماعت کو لیڈ کروں. ساری جماعت ایک طرف حاضر امام اور بیچ میں پیر ہے. یہ پیر جماعت کی سب باتیں امام کے پاس رجوع کرتا ہے اور اس جگہ کے اوپر دعا پڑھانے والا بیٹھتا ہے. پاک صاف ہو کہ اگر دعا پڑھانا ہے، یوں بھی ہمارا فرض ہے دینداروں کہ جماعت خانے کے اندر آؤ، نہا کے آیا کرو. اب میں اسماعیلی طریقے کی کچھ باتیں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی سب اب اسماعیلی طریقے کی ہے. ہر ایک اسماعیلی ہر روز نہا کے جماعت خانے آتا ہے. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ٹائم نہ ملا یا بیمار ہے تو ہاتھ منہ دھو لیتا ہے، وضو کرتا ہے. لیکن ہم اسماعیلی لوگوں کا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری روایت ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے، پرنالی کا ہے، کچھ بھی کہو، کہ ہم لوگ ہر روز نہا کے اچھے کپڑے پہن کے جماعت خانے میں آتے ہیں. ناسمجھی کے کارن سے، نادانی کے کارن سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کام کے اوپر سے آدھی باں کی قمیض اندر ٹھسی ہوئی کارخانے میں سے نکلے چلے آئے سیدھا جماعت خانے، پسینے سے ریپ جب ہوئے، بازو میں بیٹھتے ہیں تو بو آ رہی ہے، آ گئے ہیں. یہ طریقہ، یہ شریعت عام مسلمانوں کے اندر ہے،
कि दुकान जारी है और यकायक अजान हुई तो इधर से उठ के अंदर चले गए, वुजू कर लिया और बैठ गए और यूं पसीने से रेब जेब होते रहे। हमारा तरीका ये नहीं है, हमारा बांधा हुआ वक्त है, उनका भी बांधा हुआ वक्त है, मगर उनकी शरीयत और हमारे तरीकत के अंदर फर्क ये है कि हम हर रोज शाम को नहा के आते हैं। कभी शाम को नहाना नहीं बनता तो कम से कम बदन पाक साफ करके वुजू करके अच्छे कपड़े पहन के आओ। हमको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है, हमारे इमामों के फरमानों में भी है कि जमात खाने के अंदर आओ पाक साफ और अच्छे कपड़े पहन के आओ। याद रखो, ऐसा ना कहना अबू अली ने कहा था अच्छे कपड़े पहन के आओ और जरी बरी की अच्छी तरह से खूब सज धज के आओ, ये मेरा कहना नहीं है। अच्छे कपड़े का मतलब धोए हुए हैं, पाक हैं, साफ हैं। और जब भी आप कभी नेचुरल कॉल्स के लिए जाओ तो जरूर वुजू के तरीके पे हाथ मुंह धो, और वॉशरूम के अंदर भी जाओ तो पानी यूज करो। टॉयलेट पेपर जरूर है, कोई शक नहीं। और जहां हमको पानी नहीं मिलता तो जिस तरह अल्लाह ने हमको कुरान शरीफ में मिट्टी यूज करने के लिए कहा है अपनी तोहारत के लिए, उसकी जगह हम टॉयलेट पेपर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे मजहब के अंदर इस सदर दिन की जो 100 क्रिया बनाई हुई हैं उसके अंदर हमको पानी इस्तेमाल करने के लिए हुक्म किया है। ठीक है, अरबस्तान जैसे मुल्क में या आप इधर ये न्यू मैक्सिको किसी डेजर्ट में चले जाओ और पानी न मिले तो और बात है, वगरना पानी यूज करो और पाक साफ होके जमात खाने में आओ। तो दीनदारों, हमारे तरीके के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिनको मोती और हीरे जवाहरात की तरह कीमती कहा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई आदमी नदी के अंदर सुबह से शाम तक 5 दफा के 7 दफा नहाता होवे तो वो कैसे पाक साफ रहता है। इसी तरह से हुजूर ने फरमाया, मस्जिद के अंदर आने से तुम्हें बरकतें मिलती हैं, यानी तुम्हारे गुनाह स्वाफ होते हैं और तुम्हें खुदा की रहमतें, सवाब और बख्शिश मिलती है। इस सतगुरु ने फरमाया कि गत सरोवर माझशीलता, ये जो गत है, गत कहते हैं जो हाजिर जमात होती है। इस वक्त घर में जो बैठे हुए हैं वो ये गत में शामिल नहीं, तो गत का मतलब ये है। लेकिन जब हम जुमलो जमात कहते हैं तो सारी दुनिया की जमातें आ गई। इस गत के अंदर पीर फरमाते हैं सरोवर ये एक झील की तरह, एक लेक की तरह है। इसके अंदर तुम आके नहाओ, डुबकी लगाओ, गोता मारो, स्विम करो तो तुमको मोती हीरे मिलेंगे। मोती अमूलक लादा, ऐसे कीमती मोती मिलेंगे कि जिनकी कीमत कोई तय नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको अर्ज की, मौलाना अली शाह फरमाया कि एक सलवात पढ़ने का इतना सवाब है कि फरिश्ते गिन नहीं सकते, जैसे कि बारिश के कतरे गिने नहीं जा सकते। ऐसी एक ये भी मोती की बात की मैंने। दुआ पढ़ाने वाला एक दिन अफ्रीका के एक जमात खाने में शाम को मैं जरा जल्दी गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है, मैं 10-20 मिनट पहले जाके कुछ तस्वीरें निकालता हूँ। और हमारे तरीके के अंदर ये भी एक फर्ज में नहीं आता, मर्जी की बात है, लेकिन अच्छी चीज है। तो मैं और मुखी साहब थे, मैं नीचे उतरा तो मुखी साहब उधर खड़े थे, तो हम दोनों बातें करते करते हम चले गए। आगे चल गया, जमात खाने का जो मेन एंट्रेंस था, गए तो राइट साइड के ऊपर 5-6 नल लगे हुए थे कि जहां लोग अपने हाथ मुंह धोते हैं, पांव धोते हैं। इसके पीछे मर्दों की जो साइड थी वॉशरूम्स थे, WCs वगैरह थी। कुछ 8-9 बरस का एक लड़का WC में से ऐसा निकला और सीधा ऊपर चढ़ गया। कोई खास ध्यान नहीं किया उसमें, ना हाथ धोए ना पांव धोए, चला गया ऊपर। जुमे का दिन था, न्याज पीने के लिए जब उठे तो मुखी के साथ जो 4-5 आदमी हमेशा जाते हैं जमात की बड़े, तो मैंने देखा कि वो छोकरा सुकरीत के ऊपर बैठा है और उस जमाने के अंदर हाथ से सुकरीत देते थे।
उस लड़के को मैंने देखा, मैंने कहा मुखी साहब ये वो लड़का है कि जो WC में से टॉयलेट में से निकल के सीधा ऊपर आ गया, ना हाथ धोया ना मुंह धोया, अब ये इसी हाथ से हमको सुकरी देगा। लोग इधर से इस लड़के को उठाया और दूसरे किसी आदमी को बिठवाया। 2-5 रोज के बाद मेरी वाइफ थी, तो मैंने जमात का ध्यान खींचा और मुखी साहब को भी मैंने कहा कि चमचे से हम सुकरीत देवें वो बेहतर है। तो चमचे से सुकरीत शुरू की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोस्टली जगहों के ऊपर चमचा यूज होता है। एक दिन अफ्रीका की एक जमात के अंदर इसी तरह से सुकरीत लोग उस जमाने में हाथ में लेते थे, और जिस भाइयों ने बनाया था उसने भी दिल खोल के अंदर मक्खन डाला था। तो अब उसके जो हाथ तो खराब हो गए, तो सामने एक आदमी को ऐसा करके उसके कंधे पे हाथ मारा, यार कभी मिलते हो, तो अपना सारा हाथ पूंछ लिया उसने। अब उसको मालूम नहीं कि मैं देख रहा हूं, और न उस आदमी को पता है तो मेरे कंधे पे क्या कर दिया इसने। मैंने मुखी साहब को एक दिन बात की, मैं बोला मुखी साहब आपको कुछ इसमें तकलीफ ना होगी कि अगर हम जमात खाने के अंदर ये छोटे कागज है ना, हम ये इस्तेमाल करें, हाथ खराब ना होवे, लोगों के कपड़े खराब ना होवे। और मैंने ये वाकया बयान किया। अब मेरी कमनसीबी, बदबख्ती समझो कि कुछ भी, इत्तेफाक समझो कि वो आदमी आ रहा था, तो उसको मैंने बुलाया, मैंने बोला तुमने ऐसा किया था। बेचारा शर्मिंदा हो गया। मुखी साहब को यकीन हुआ और हमने ये पेपर शुरू किया। तो ऐसे हमारे मजहब में समझने जैसी चीजें हैं। एक जमात खाने के अंदर चांद रात थी, मैं छाता लेने के लिए गया। जो बुजुर्ग छाता दे रहे थे, अभी हम जाके उधर हाथ बांधते हैं और अपने गुनाह की मुआफी मांगते हैं। तो उसका ऐसा हाथ पड़ा था, मेरी नजर पड़ी तो उसके जितने नाखून थे इसके 50% बाहर थे, यानी बड़े बड़े नाखून, अंदर मैल जमी हुई, काले काले। मैंने सिर्फ एक ही दफा कहा तौबा बंदो गुनहगार बख्शिशा पीर परे। मेरी नजर पड़ी, मैंने इधर से ही ये दुआ बंद करके मैं लाइन छोड़ के चला गया। सब लोग बड़े हैरान हुए। अब वली मिशनरी ने इधर से उठ के चले गए, लाइन बदल दी, मैं चला गया दूसरी जगह। अब ये बड़े आदमी थे, उसको भी बहुत बुरा भी लगा। दूसरे दिन मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा देखो वारिस साहब, मैं उठ गया इसलिए कि आपके इतने बड़े बड़े नाखून, उसके अंदर मैल जमी हुई, शायद 1 महीने से आपने नाखून नहीं काटे, आपको छांटे के ऊपर बैठने का हक क्या है? एक बात याद रखो, जब मैं मजहब की बात पे आता हूं, मैं किसी की शर्म नहीं करता, मेरी सगी माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस एटीट्यूड को रखा है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं खुले खुला न बोलूं तो बहुत सी चीजें कई लोग समझते नहीं। मैंने कहा आपको हक क्या है? और जो आदमी किसी को वारा देते भी हैं तो उनको भी ये देखना चाहिए कि फलाना आदमी इस बात के लायक है। किसी को सर्दी जुकाम हुई है, घड़ी घड़ी ऐसा ऐसा करता है, और उसको आप गटपाट के ऊपर या उसको छांटा देने के लिए बिठा दो, तो बिठाने वाले का भी गुनाह है, जैसा कि मुखी कामड़िया के अमलदार के कोई भी जो वारा देता हुए, और उसका भी गुनाह है, उसको कह देना चाहिए, मैं नहीं। इसी तरह से यह भी याद रखो कि दुआ पढ़ाने के लिए या घटपाट के ऊपर बैठने के लिए मुखियानी कामड़ियानी को और जो वारा देने वाली हैं उनको ये समझना चाहिए कि औरतों के अंदर जो 4 दिन ऐसे हैज के होते हैं, इस दरमियान उनमें से कभी किसी को भी दुआ का वारा नहीं, उसको लेना भी नहीं चाहिए, न उसको घटपाट पे बैठना चाहिए, न सुखरीत पे बैठना चाहिए, न तस्बीह निकालनी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने ये 4 दिन उनके लिए इस तरह रखे हैं, ये रसूल का हुक्म है। और हमारे पीर सदरुद्दीन ने 100 क्रिया के अंदर भी इसका जिक्र किया हुआ है। हमारा जो मजहब है उसको एक वेज की तरह मत समझो। मजहब बड़ी आला चीज है, और खास तौर पे इस्माइली तरीका जो है, मोमिनो ये तो नबियों का दीन है, पवित्र दीन है। अगर आप अपने मजहब के ऊपर बराबर अमल करो,
اگر آپ اپنے مذہب کی عزت کرو اور مذہب سے محبت کرو تو یہ مذہب آپ کو بہت فائدے دے گا، بہت فائدے دے گا، دنیاوی فائدے بھی ملیں گے، دینی فائدے بھی ملیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو ملے گا تو خدا کی نورانی بخششیں ملتی رہیں گی جو میں زبان سے کہہ نہیں سکتا، آپ سمجھ بھی نہیں سکو گے، لیکن جب یہ آپ کو بخششیں مولا دے گا نا تو اب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں مجھ کو میرے مولا نے بخشش دی ہے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ ابھی میں کہنے کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ کہوں گا تو سمجھ نہیں سکو گے، مگر اس وقت خود بخود پتہ لگے گا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں جب خدا تمہارے اوپر راضی ہوگا اور تمہیں کوئی بخشش دے گا تو تمہیں یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ لوگوں کو کہو کہ بھلا اس کا کیا مطلب۔ مولا فرماتے ہیں تم کو سمجھ بھی ساتھ مولا دے گا، یہ اس کی بخشش ہے۔ جماعت خانے کے اندر آ کے کہ جہاں شاہ اور پیر کا نور موجود ہے، اس نورانی جگہ کے اوپر اس کی اتنی عزت کرو اس جماعت خانے کی کہ دنیا کا کوئی بھی جماعت خانہ، پھر اس جماعت خانے کے اندر کبھی یہ قیمتی کارپیٹ نہ بھی ہو، صرف مٹی ہو، جیسے کہ ایران کے جماعت خانے جو ہیں نا، اب تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، لیکن 60s کے اندر آج سے 25 برس پہلے میں نے جب ایران کا دورہ کیا تو ان کی غریبی دیکھ کے میرے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ جماعت خانوں کے اندر چٹائیاں بھی نہیں تھی، سیمنٹ تو ہے ہی نہیں، صرف مٹی ہی مٹی، دھول، اس کے اندر بیٹھ جاؤ تو سارے کپڑے اور ہاتھ پاؤں مٹی سے بھر جاتے ہیں، ایسا سمجھ لو کہ باہر مٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہمارے جماعت خانوں کی تھی۔ میں نے اس کی رپورٹ حضرت امام کو بھیجی تھی ساری۔ اب تو وہاں چٹائیاں ہیں اور بہت سی جگہوں کے اوپر کارپیٹس بھی ہیں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کارپیٹ ہوئے کہ نہ ہوئے، چٹائی ہوئے کہ زمین ہوئے، لیکن جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، شاہ پیر کا نور ادھر موجود ہے۔ وہ جماعت خانہ کرائے سے لیا جاوے یا قیمت سے خرید کے لیا جاوے، مگر کبھی وہ ٹیمپرری بھی ہے تو بھی وہ جماعت خانہ ہے اور شاہ پیر کا گھر ہے، اور اس گھر کی بڑی عزت کرو۔ آپ لوگوں نے شاید میری کسی واعظ میں، کیونکہ میں نے بعض ایسی واضح بھی کی ہیں کہ جو میں برسوں تک پھر مجھے بھی یاد نہیں آتا، ریپیٹ نہیں کرتا، میں کبھی بھی میں نے کبھی وائز کا ٹاپک طے نہیں کیا، جماعت کو دیکھ کے پھر جو دل میں آتا ہے مولا بلواتا ہے۔ تو میں نے اپنی وعظوں میں ایسا ایک دفعہ ذکر کیا، مولانا علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی تھیں، لیکن یہ جو 6ویں شادی تھی جو مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں تھی، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور ابھی میں نے ذکر کیا پیر شہاب الدین شاہ جو تھے نا، وہ 22-23 برس کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب کوئی بھی چھوٹا بچہ علی شاہ ماں باپ کے گھر میں نہیں تھا۔ ایک اور بھی فرزند تھا ان کا علی شاہ ماں باپ کا، آغا نور شاہ، لیکن سلطان محمد شاہ کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا، اور سلطان محمد شاہ کی ماں اسناشری تھی، سلطان محمد شاہ کی ماں فتح علی قاچار کی دوہتری تھیں، یعنی لڑکی کی لڑکی تھیں، اپنے مذہب کو جانتی تھیں، علی شاہ کی گھر والی تھیں، اور مولانا علی شاہ اس زمانے کے اندر پیری جامع میں تھے، حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا جامع تھا۔ ایک دن مولانا حسن علی شاہ، پیر علی شاہ، دونوں شاہ پیر بیٹھے ہیں جماعت خانے میں، اور اس دن بھائیوں کی کچھ باتیں ایسی تھیں جیسے کہ گھوڑا براتے ہیں، کچھ شادی کی باتیں تھیں، کچھ مہمانیاں تھیں، عورتوں کا کام تھا، مرد بیٹھے تھے۔ تو یہ بائی آئی، اس کے ساتھ ایک کھوجی عورت بھی تھی، لمبا گھونگھٹ نکالا ہوا۔ یہ جو کھوجی عورت تھی، اس نے کامڑیا حاجی کو کہا کہ یہ میری سیٹھانی ہے، اس کو بچہ نہیں، مولا کو عرض کرو۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کو اس نے عرض کی، مولا نے ایک ایپل اٹھا کے اس کے کھوڑے میں، یعنی پچھڑی جو دوپٹہ لیا ہوا تھا اس کا تھوڑا سرا ایسا کر دیا، تو اس میں مولا نے ڈال دیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ انشاءاللہ فرزند ہوگا۔ جب وہ گئی
तो अली शाह माँ बाप उसको, हसन अली शाह माँ बाप उसको पीछे देखते रहे। बाजू में जाके ये बैठी नहीं, दरवाजे से बाहर निकल गई। अली शाह सुल्तान मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने हाजी कामड़िया को कहा कि हाजी कामड़िया, ये जो 2 औरतें अभी गईं, ये देखो तो कौन है। गया भाइयों में मुखियानी को पूछा, ये अभी 2 बाइयां गईं तो कौन सी? मुखियानी बोली, मुझे पता नहीं पापा। दरवाजे के ऊपर जो वॉलंटियर बाई थी उसको पूछा, उसने कहा मुझे पता नहीं। आके कहा खुदावंद पता नहीं है। मौला फरमाया देखो, उस तपास करो कि वो कौन है। हाजी कामड़िया फिर नीचे उतरे तो पता लगा कि 2 बाइयां एक गाड़ी में बैठ के चली गईं। तो हाजी कामड़िया मौला की गाड़ी जो नीचे खड़ी थी उसमें बैठे, घोड़ा गाड़ी थी, मोटर नहीं थी। उसको बोला कि उस गाड़ी को गई, उसको फॉलो करो। उसको फॉलो किया। वो तो काफी देर से निकल चुकी थी, लेकिन मौला की गाड़ी के जो घोड़े थे वो बड़े जबरदस्त घोड़े थे। आखिर मजगाम के पुल के नजदीक पहुंच के उसको पकड़ा। आगे वो पीछे। ये थोड़ा फासला रह गया। जब ये उधर पहुंचे वाड़ी के अंदर तो वो गाड़ी खाली हो गई। मोमना था ड्राइवर, उसको पूछा, ये भी तू 2 बाइयों को लेके आया? कहते हाँ। कौन थी वो? तो चुप हो गया। तो थोड़ा धमकाया तो कहने लगा बीबी सरकार थी। बीबी सरकार यानी अली शाह माँ बाप की घर वाली। हाजी कामड़िया को यकीन नहीं आता। जाके बंगले के अंदर उसी लड़की को, औरत को पूछा कि जो उसके साथ आई थी, तो उसने कहा कि हाँ बीबी सरकार थी। लेकिन हसन अली शाह माँ बाप ने जब उसका खोड़ा भरा, गोद भरी, उसके सिर पे हाथ रखा, दुआ फरमाई, तो उसको एक हुक्म किया कि तुम हर रोज अपनी पछेड़ी से जमात खाना साफ करो और वो ओढ़ के जाया करो। मेरे दादा ने ये हकीकत अपने हाथ से लिखी है और मेरे दादा ने कहा हमने आंख से देखा कि माता सलामत सुबह 10-1 बजे जब मर्द लोग सब चले जाते थे काम पर, तो नीचे वाड़ी के जमात खाने के नीचे चौकीदार बिठाते थे कि ऊपर कोई मर्द न आवे। माता सलामत वाड़ी के जमात खाने के ऊपर जाके अपनी पछड़ी उतार के जमात खाना साफ करे और ये पछड़ी पहन के चली जावे। 9 महीने के बाद सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। ये वो जमात खाना है कि इमाम की मां ने जमात खाने को साफ करके अपनी औलाद मांगी और उसको मिली। जमात खाने की बहुत इज्जत करो, क्योंकि जमात खाने की बेअदबी करने से हमारी रोजी रिज़्क में बरकत उड़ जाती है। जमात खाने की बेअदबी करने से हमारे और भी बहुत से मजहबी आमाल बर्बाद हो जाते हैं। आप किसी आदमी की बेइज्जती करो, उसको कैसा लगता है? कभी आपका दोस्त भी होगा तो भी उसका दिल नाराज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जमात खाने के अंदर गादी के ऊपर मुखी कामड़िया जो बैठे हैं उनकी बहुत इज्जत करो। मैंने इधर यारी मदद की है मुखी कामड़िया को। ऐसा मत समझना कि मुखी कामड़िया ने मुझे थोड़ी आइसक्रीम खिला दी और मैं आपको कह रहा हूं। मुखी कामड़िया इमाम की और पीर की गादी पे बैठे हैं। इसी तरह से मुखियानी कामड़िया, इनकी बड़ी इज्जत करो। इनके सामने जोर से बोलो भी मत। आपको कोई ऐसा भी हुक्म करे कि जो आपको पसंद नहीं मगर मुखी का हुक्म मानो, वो पीर का शाह का हुक्म है। मुखी कामड़िया का सामना कभी नहीं करना। मुझे बहुत दफा मुखी कामड़िया को ऐसी बातें करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कहता। जब दुआनियत खैर हो जाती है, नीचे उतर आते हैं, या मैं उनकी ऑफिस में या घर पे जाके उनको कहता हूं, लेकिन सामने कभी नहीं। मुखी कामड़िया का कभी भी अपमान नहीं करना, क्योंकि वो हजरत इमाम का अपमान है। मुखी कामड़िया की जो इज्जत है वो हमारे मजहब के अंदर ऐसी इज्जत है कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1928 का जिक्र करता हूं। पेरिस के अंदर मोहम्मद अली नगीने वाला एक मुखी था। बराबर 60 बरस हुए इस बात को।
मौला ने मार्शल से उसको फोन किया कि मुखी अर्जेंटली जल्दी से तुम मार्शल्स पहुंचो। भले खुदा, वो जमाने में एरोप्लेन की सर्विस नहीं थी। अपनी मोटर लेके वो पेरिस में से निकला, क्योंकि ट्रेन भी जल्दी से मिलती नहीं थी। जब मौला के बंगले पे पहुंचा तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बंगले के बाहर जो कॉरिडोर था उसमें घूम रहे थे। मौला उसको देखे, जल्दी से नजदीक आए, उसने सलाम किया। मौला ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। कहाँ ले गए? अपने बेडरूम में ले गए। क्या था बेडरूम में? प्रिंस अली खान की माँ माता थेरेसा डेथ बेड के ऊपर पड़ी थी, उखड़े उखड़े सांस थे। मौला फरमाया, मुखी तुम बेगम को छांटा दो। वो कहते खुदावंद आपने इसके लिए मुझे फरमाया? हाँ, तुम छांटा दो। मोहम्मद अली मुखी ने प्रिंस अली खान की माता श्री को, बेगम थेरेसा को, प्रिंसेस थेरेसा को छांटा दिया और थोड़े वक्त में वो गुजर गई। कई बरसों तक उसके दिल में ये रहा और आखिर एक दिन उसने सुल्तान मोहम्मद शाह को पूछा। मामा फरमाया कि छांटा देना ये जमात का काम है, ये जमात का काम। अपनी बेगम को छांटा दिलवाने के लिए मुखी को पेरिस से बुलवाया। 350-400 माइल शायद इससे ज्यादा हो गए और मुखी उधर गया। यह है मुखी का मड़िया का दर्जा। इनका सामना कभी न करो, इनकी बेइज्जती कभी न करो। और जमात खाने के अंदर बहुत अदब ईमान से चलो, बहुत रिस्पेक्ट करो जमात खाने की। खुदा न करे आपको कोई तकलीफ होवे। जमात खाने में जमात खाने का सब काम काज पत जावे, कोने में बैठ के 2 तस्बीहां सलवात की निकालो, सजदा करो। मौला तुझे सब मालूम है, मेरे ऊपर ये तकलीफ आई, पीर जे परसादे गत की तुफैल, मेरे ये मुश्किल दूर कर दे। मैं आपको खतरी देता हूँ 40 दिन में आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने ऐसा एक फरमान किया कि तुम्हें दुनिया की कोई भी तकलीफ आवे, 3-4 जुदे जुदे फरमाने में वो सब सुनाता हूँ ताकि जो आपको पसंद हो आप कर लो। मौला फरमाया, जब दुनिया की कोई तुम्हें तकलीफ आवे, मुश्किल आवे, तो तुम जंगबार की पहली मुसाफरी जो मेरी हुई उसके फरमान पढ़ो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की ज़ंज़ीबार की पहली मुसाफरी 1899 में हुई। 1899 के फरमान कलाम इमाम मुबीन में है, बहर रहमत में है। मौला फरमाया, और उसमें लिखा हुआ है मोटे लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कि इमाम फरमाया, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ, मुसीबत, मुश्किल आए तो तुम मेरे फरमान जंगबार की मुसाफरी के फरमान पढ़ो। आधा या पौना सफा पढ़ के फिर एक तस्बीह निकालो पीर शाह की, सजदा करो। इस तरह से कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन आप ये तस्बीह निकालो, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल दफे होगी। दूसरा एक फरमान है कि अगर तुम्हें कोई दुख आ पड़े, उसमें यह है मुश्किल और मुसीबत की बात है। अब मौला कहते तुम्हें कोई दुख आ पड़े तो उस वक्त तुम अनंत अखाड़ा पढ़ो। कमरिया हाजी का बेटा गुजर गया, जवान बेटा 21-22 बरस का गुजर गया। इसकी औरत को बहुत रंज हुआ, जवान बेटा गुजर गया। कमरिया हाजी भी बूढ़ी उम्र में, दिल को गम जरूर लगे लेकिन इमाम के हुजूर में आना जाना था, इसके लिए उसका दिल भरा रहता था। तो बीमार पड़ गई उसकी औरत। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह उसके घर गए और उसको जाके कहा कि जन का मड़िया यानी कामड़िया की औरत अनंत अखाड़ा पढ़ो, इससे तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। अनंत अखाड़ा पढ़ने के लिए 500 पाठ हैं, 40 दिन लगते हैं। रोज 15-16 पाठ पढ़ो और उसके बाद एक तस्बीह निकालो, पीर शाह की सजदा करो, पीर हसन कबीर दिन का वास्ता दो, इंशाल्लाह आपका गम दूर होगा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक दिन बड़े जमात खाने में आके, बॉम्बे की बात करता हूँ, बड़ा यानी दरखाना जमात खाना, माँ बाप फरमाया, जो आदमी
सुबह जमात खाने में आके दुआ के बाद 2 तस्बीह सलवात की पढ़े, उसकी सब मुश्किल दूर हो गए, उसकी दुआ कबूल हो गए। और ऐसे बहुत से आदमियों को मैंने देखा जिन्होंने ये बात की, मौला ने सचमुच उनकी मदद की। हमारा मौला का घर तो एक झील की तरह है कि जिसमें मोती हैं, हीरे जवाहरात, और वो हीरे जवाहरात लेने के लिए हमें इस झील में उतरना चाहिए। दीनदारों, मौला ने आपको ऐसा अच्छा मकान दिया, जमात खाना दिया, माशाल्लाह आपकी जमात बड़ी हो रही है, माशाल्लाह आपका काम धंधा अच्छा है, 90% आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जॉब और नौकरी वाले बहुत थोड़े हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं आप जमात के अंदर कि जिनके पास काफी है और काम थोड़ा है, खाना ज्यादा है, आवक भी बहुत है। फिर भी मैंने कमरिया साहब को, परोड़िए के कमरिया साहब को पूछा, मुफ्ती साहब हैं, कमरिया साहब हैं, मैंने पूछा सुबह जमात खाने में 50 एक आदमी आते हैं, तो मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे कहते हैं बस उसमें से एक वो 0 है ना, वो निकाल डालो। 250 जीव की बस्ती और सुबह 5 आदमी, ठीक है 50% बच्चे हैं, छोड़ गए, मगर हमें जमात खाने में आना चाहिए। जितनी इबादत करोगे उतना फायदा मिलेगा। और बैतुल ख्याल की इबादत तो बहुत जरूरी चीज है, घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जहां तक बन सके जमात खाने में आने से फायदा ये है, ये शापीर का घर है। जमात खाने के अंदर आप जब भी आते हैं, इस वक्त भी रूहानियां मौजूद हैं, फरिश्ते मौजूद हैं, शापीर का नूर मौजूद है। घर के अंदर हमको ये चीज नहीं मिलती। जमात खाने का दर्जा ऐसा ऊंचा है, आलीशान है, इधर आके हमें ध्यान भी लगता है। और इसके अलावा हम ये नियत करके मौला की खातिर सुबह परोड़िए जाग के, चल के या गाड़ी में बैठ के जब हम जमात खाने आते हैं तो दीनदारों हमको बहुत फायदा और सवाब मिलता है। मौला को ऐसा होता है अपनी नींद छोड़ के ये मेरे घर पे आया है, बहुत बड़ा दर्जा है ये। जितना बन सके जमात खाने में आओ, परोड़िए की इबादत करो। इबादत से दिल पाक होता है, साफ होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सुबह की इबादत करने से आदमी को दुनिया का माल और दौलत मिलता है, लेकिन एक चीज जरूर है, मन की शांति मिलती है। मौला नूरानी बख्शिशें देगा वो तो जब उसकी मर्जी होगी, लेकिन इबादत करने वाले आदमी के दिल के अंदर सब्र रहता है, संतोष रहता है, सुख रहता है, शांति रहती है। मौलाना हजरत इमाम ने बैतुल ख्याल के फरमाने में फरमाया, अगर तुम बराबर अपने मजहब के ऊपर अमल करोगे, भले दुनिया के अंदर इंसानी जिंदगी है, तुम्हें दुख आएंगे मगर तुम दुखी नहीं बनोगे। दुख आएंगे और दुखी नहीं बनोगे, उसका मतलब क्या? मतलब यह है कि प्रॉब्लम जरूर होंगी, लेकिन तुम्हारा दिल जलेगा नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर हाय नहीं निकलेगी, तुम्हारे दिल में गम पैदा नहीं होगा, और तुमको कुव्वत रहेगी दुनिया के दुखों का सामना करने के लिए। याद रखो दीनदारों, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक में 3 जगह अल्लाह ताला ने, बल्कि इससे ज्यादा जगह के ऊपर, मगर 3 तो बिल्कुल जाहिर में ऐसी बातें हैं कि ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं। तमाम दुखों के अंदर खुदा फरमाया तुम्हारा हाथ है। और हमारी जिंदगी में 99% दुख है। मैं बहुत दफा अपनी वाजों में ये कहता रहता हूँ और इसलिए रिपीट करता हूँ कि लोगों को ये बात का ध्यान रहे कि हमारी जिंदगी में 99% प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, डिफिकल्टीज हैं, 1% सुख है। मगर जब हम इबादत करते हैं तो ये 99% जो दुख है ना, उसमें से बहुत से खुद ब खुद मेल्ट हो जाते हैं, और बहुत से दुखों का हमें खुदा रास्ता बताता है, और बहुत से दुख हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं लेकिन हमारे दिल को दुखी नहीं करते, हमें उसकी गम और परवाह नहीं रहती। हाँ, चलता तो चलते हैं। जैसे कि एक आदमी लंगड़ा हो जाता है तो फिर सारी जिंदगी
اس سے دوستی کر لیتا ہے تو دکھوں سے بھی ہماری دوستی ہو جاتی ہے. بعض دکھ ایسے ہیں دینداروں کے ساری زندگی نہیں مٹتے، لیکن بہت سے ایسے دکھ ہیں عبادت بندگی کرنے سے مٹ جاتے ہیں. خدا اس کا راستہ بھی بتاتا ہے، دعائیں مانگنے سے خدا سنتا ہے. تو یاد رکھو ہمارا جو اسماعیلی مذہب، اسماعیلی طریقہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر دم ہمارے اوپر علی نبی کا نور حاضر موجود ہے جو ہمیں دورونی دیتا ہے اور اس کے چھتر چھایا میں رہتے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے، آپ کی مشکلیں مصیبتیں غم دور کرے. مولا دسوند سکریت میں پورا رکھے، مولا عبادت بندگی میں مشغول رکھے. مولانا حضرت امام آپ کو دین دنیا میں اپنی چھتر میں چھایا میں رکھے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کی اچھی نیتیں قبول کرے. مولا آپ کی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی زیادہ کرے. مولانا حضرت امام آپ کو بہت ہمت والا، بہت عقل والا، بہت اونچے خیال والا، نور سے بھرا ہوا ایمان عطا کرے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، خوشی رہے. آپ کی اعلی اولاد کو بھی یہ سب دعائیں قبول کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. اے زندہ